Hello friends, how are you? In our last class we discussed about the Niels Bohr atomic model, and then we also discussed about the Bohr-Bury scheme of electron distribution. We discussed about the Bohr-Bury scheme of electron distribution. Okay. Some of the students requesting to re-explain these Bohr-Bury scheme of electron distribution. So let me first discuss about that, because without discussing about that we cannot understand our next topics, that is valency and the distributions of the electrons and how can we calculate the valency. Okay, so again let us start it. The first rule of the Bohr-Bury scheme is electrons always fill in the stepwise manner. That means first K shell, then L, then M, and then N. The electron firstly goes into K, then L, then M, and then N. That is the first rule of Bohr-Bury scheme. Got it? Second rule was the calculation of the maximum electrons, and according to which the maximum electrons in a shell is equals to 2n square, where n is number of shell. Okay, and you know that for K shell the value of n is 1, for L 2, for M 3, for N that is 4. So by putting these values we can easily find out the maximum number of electrons. For example, for K shell the formula is 2 into n square. N value is 1, so 2 into 1 square, that is 2. L shell, that is 2 into, for the L the value is 2, so 2 into 2 square, that is 4, 4 2 ja 8. For M shell 2 into 3 square, 3 square, that is 9, 9 2 ja 18. And for the N shell, that is 2 into 4 square, 4 square, that is 16, 16 2 ja 32. So the maximum number of electrons which can possible in any shell, that is can calculate by 2n square formula. The third rule was maximum number of electron in outermost shell, can be possible is 8. That means the maximum number of electrons can be possible, that are 8. Got it? Now the questions which comes in the mind of lots of students, that how can 8 if that is N or M shell? If that is M shell, then maximum number of electron, that is 18, and there are 32, but here that is 8 only. Then how can it possible? Let me clear you one thing. Suppose an atom has K, L, M, N shell. Its maximum number of electrons are 18, it's 32. But if it is outermost shell, then only 8 electron can possible. Now the questions comes, suppose we have, by taking one example we can consider it. For the calcium, atomic number is 20, so the number of electrons is also 20. Now in K shell 2, L shell 8, M shell 2, 8, that is 10, 10 is remaining. M shell 18 is possible, that? No, because if there is 10, then it is not following the rule, this one. Got it?
So here 8 electrons are in M shell and remaining 2 electrons are transferred into N shell. Got it? So here it is not more than 8. Got it? Understand? Now let me take the example zinc. Atomic number is 30. So the number of electrons is 30. Now start to fill the electrons. K shell 2, L shell 8. How many remains? 20 are still remaining. Here 18 are in M shell and 2 are in N shell, because M shell maximum electrons are 18. The concept of maximum electrons is applicable when these are not the outermost shell. Got it? Here one thing, if that is K shell, then there is only 2 electrons, because the possibility of the maximum electron is 2. So this one, for K shell, the maximum number of electrons can possible, that is 2, and if it is outermost, then it is also 2. Got it? So that is some some difference, or we can say slightly some deviation from this rule. Okay, now I think it is clear in your mind that how these rules are applicable. Okay, clear? Now let me move to our topic, that is valency. What is valency? For consider that you must have knowledge about the valence electrons. Firstly, discuss about the valence electron. What do you mean by valence electrons? The electrons of outermost shell. The electrons of outermost shell are called valence electrons. outermost shell के जो electrons होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? valence electrons बोलते हैं. That are called valence electrons. Got it? From the Bohr-Bury scheme, it is clear that the maximum number of electrons in outermost shell is 8. Bohr-Bury scheme अभी अपन ने डिस्कस किया, उससे ये बात क्लियर है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी आउटरमोस्ट शेल में, वो कितने हो सकते हैं? दैट आर 8. Got it? That means we can say that if an atom has 8 electrons in the outermost shell, then it is less reactive, or we also say that it is stable. This is the parameter of stability of an atom. 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होना किसी भी एटम की स्टेबिलिटी का पैरामीटर है. अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली वो स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है. Got it? In other words, we can say that 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्टेट. इसके लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है? ऑक्ट. ऑक्ट बोलते हैं 8 के लिए. इन केमिस्ट्री मोनो 1 के लिए, डाई 2 के लिए, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8. ओके, तो ऑक्ट इलेक्ट्रॉन्स, so that is octet. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट फुलफिल होना जरूरी है. ऑक्टेट अगर फुलफिल है तो वो एटम कैसा माना जाएगा? दैट इज लेस रिएक्टिव या स्टेबल होता है. और वी कैन ऑल्सो से दैट इनर्ट इन नेचर में होता है. गॉट इट? इसी को ध्यान में रखते हुए कॉसेल, एक साइंटिस्ट है कॉसेल और लेविस, उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था. उन्होंने क्या दिया था? ऑक्टेट से रिलेटेड एक रूल दिया था जिसको अपन बोलते हैं ऑक्टेट रूल. क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टेट रूल. अकॉर्डिंग टू विच सिंपल लैंग्वेज बोल देता हूं पहला मैं.
अकॉर्डिंग टू विच, इसके अकॉर्डिंग एक कोई भी एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने चाहता है वो? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, यानी कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी एटम वांट कंप्लीट ऑक्टेट। अब जरूरी नहीं है सभी के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो, अगर है तो वो लेस रिएक्टिव है, लेकिन अगर नहीं है, इफ इट इज नॉट, देन एटम जो है जिसका कंप्लीट नहीं है वो कुछ चीजें कर सकता है। वो क्या क्या है? आइदर इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या सेकंड थिंग वो कर सकता है गेन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या थर्ड वो कर सकता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बाय डोनेटिंग, गेन और शेयर, इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्या चाहता है एटम? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और जब एक एटम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन या लूज करेगा या शेयर करेगा, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली वो किसी दूसरे को देगा। तो उस कंडीशन में उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है। इसके रिजल्ट में क्या बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, गेन किया जाता है या शेयर करते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या बनते हैं? केमिकल बॉन्ड्स। क्या बन जाते हैं वहां पर? केमिकल बॉन्ड्स। और यही केमिकल बॉन्ड्स जो हैं उन्हें कहा जाता है वैलेंसी। क्या बोलते हैं इनको? वैलेंसी। गॉट इट? सो फर्स्ट डेफिनेशन आती है यहां से। अब इस चीज को थोड़ा सा आप समझना कि ये क्यों है, कैसे है। सपोज कीजिए ये एक रूम है जिसके लिए फिक्स है कि अगर किसी पर्सन के पास 8 रुपीज हैं, इफ देयर इज 8 रुपीज, तो वो एंटर कर सकता है। ये है कंडीशन स्टेबिलिटी। और जिसके पास 8 रुपीज नहीं है, 8 रुपीज नहीं है, वो यहां पर इंटर नहीं कर सकता। गॉट इट? नाउ अब अपन कुछ केसेस की बात करते हैं ए और बी के लिए। ये दोनों यहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दोनों के पास 8 रुपीज नहीं है। ए के पास जो है, ए जो है उसके पास अपन सपोज कर सकते हैं इट हैज 6 रुपीज, और बी जो है इसके पास अपन मान सकते हैं दैट इज 10 रुपीज। तो इसके पास 2 कम है, इसके पास 2 ज्यादा है। इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दोनों ही अंदर जाना चाहता है, तो बी क्या करेगा? 2 रुपीज, यानी कि रुपीज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से है, 2 जो है वो किसको ट्रांसफर कर दिया? ए को। इसके रिजल्ट में नाउ ए हैज इट एंड बी ऑल्सो हैज इट, सो दोनों जो हैं वो नाउ बोथ आर स्टेबल, यानी कि दोनों ही अब इसके अंदर जाने के लिए एलिजिबल हो गए। गॉट इट? सेकेंड कंडीशन, यहां पे तो देखो एक ने लूज किया, एक ने गेन किया, लूज या डोनेट। ओके, थर्ड आपके थोड़ा सिलेबस के बाद में बात करेंगे अपन। गॉट इट? अब सेम कंडीशंस यहां पर है। ए के पास 6 रुपीज है और बी के पास 10 रुपीज है, लेकिन जब ये दोनों ही यहां पे लूज करने की पोजीशन में नहीं है, आप इसको ऐसे मान सकते हो, बी ए को बोल रहा है कि भैया 2 रुपीज तेरे को दे तो दूं मैं, लेकिन मेरे को घर जाने के लिए भी तो चाहिए वापस। तो ए क्या बोला? बोला एक काम कर, तू अपने 2 रुपीज मेरे को ट्रांसफर कर, तेरे को घर मैं छोड़ के आऊंगा। तो यहां पर इन्होंने, अब बी जो था वो थोड़ा समझदार था, उसने कहा एक काम कर, अपन दोनों मिलकर 16 रुपीज बना लेते हैं, और 16 रुपीज बनने के कारण से अपन कहां पहुंच जाएंगे? दोनों इसके अंदर इंटर करेंगे। देखो यहां पर इन्होंने ट्रांसफर किया है और यहां पर क्या किया है? शेयरिंग। राइट? तो यहां पर ट्रांसफर, डोनेट गेन के लिए अपन क्या वर्ड काम में ले सकते हैं? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या रिजल्ट करती है? दैट इज
chemical bonds. Okay, and the number of chemical bonds which are formed by an atom is called its valency. वो क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी कहलाती है. जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं, लूज किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं, उतने ही केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. तो फर्स्ट डेफिनेशन जो अपन बोल सकते हैं वो क्या बोल सकते हैं? वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ chemical bonds, number of chemical bonds formed by an atom. एक एटम ने जितने केमिकल बॉन्ड्स बनाए हैं वो क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी. क्या कहलाएगी वो? उसकी वैलेंसी. गॉट इट? सेकंड अपन बात करें द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. जो केमिकल बॉन्ड्स के जो नंबर है, इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी. कंबाइनिंग कैपेसिटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी. गॉट इट? सो वी कैन से दैट सेकेंड डेफिनेशन नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए अपन ये क्या वर्ड काम में ले सकते हैं? द combining capacity. The combining capacity of an atom is called its valency. वो क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी कहलाती है. Got it? Understand? थर्ड, केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है एटम या लूज करता है या शेयर करता है. जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा, उतने ही केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं. यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स किसके इक्वल होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं यानी कि गेन लूज किए हैं या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं. तो अगर अपन इस कॉन्सेप्ट को काम में ले तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड या शेयर्ड. तो थर्ड डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are transferred or we can say that shared by an atom. एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, गेन करता है या लूज करता है, या अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या शेयर करता है, वो क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी. गॉट इट? वो क्या कहलाएगी? उसकी वैलेंसी. क्लियर? अंडरस्टैंड? नाउ अब अपन कुछ एटम्स की, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स को अपन एग्जांपल के तौर पर कंसीडर करते हैं ताकि अपन इस चीज को मोर डिटेल में अपन इसको अंडरस्टैंड कर सकें. आई एम टेकिंग एग्जांपल्स of the, firstly let me take the example of hydrogen, second is sodium and third is lithium. तीनों को अपन कंसीडर कर लेते हैं. पहले हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 1, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11. ओके, क्लियर? हाइड्रोजन, पहले इन दो को कंसीडर कर लेते हैं अपन. 1 सोडियम दैट इज 2, 8 पर लिथियम लेते हैं. पहले हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम. लिथियम is 3 and sodium is 11. So lithium configuration is 2 1, sodium is 2 8 1. Now to complete the octet or doublet, अब ध्यान रखना
जो फर्स्ट वाला जो है मतलब जिनके पास के शेल है, के शेल ही हो तब डबलेट लगता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं। बाकी जो है जहां पर एल आ गया, एम एन शेल्स आ गई, वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्टेट जो अपन ने बात की वो लागू होता है। अब हाइड्रोजन जो है वो या तो 1 ले या 1 दे, तो 0 भी स्टेबल माना जाता है, और 2 के शेल पूरी फुलफिल हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी स्टेबल मानते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेने की या 1 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी यहां पर रहती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, इसलिए वैलेंसी कितनी होगी उसकी, वैलेंसी कितनी हो गई 1। लिथियम दैट इज 2 1 एल शेल आ चुकी, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स लागू हो जाएंगे। के लिए तो लागू होगा डबलेट, के लिए डबलेट, अगर के आउटर मोस्ट है तब तो डबलेट, और बाकी जितने भी हैं उन सब के लिए ऑक्टेट। तो अब एल शेल के पास, सॉरी लिथियम के पास देयर इज 2 1। अब या तो ये 7 लो या फिर जो 1 है उसको हटा दो, तो 1 हटा दे, अंदर कितना बचेगा 2, डबलेट पूरा फुलफिल है तो वो स्टेबल होगा। तो लिथियम जो है उसकी टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन देने की, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए इसकी भी वैलेंसी कितनी है 1। सोडियम कॉन्फ़िगरेशन इज 281, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। अब या तो ये 7 लो या ये 1 रिमूव कर दो, क्योंकि 1 रिमूव करते हैं अंदर कितना बचेगा 8, जो कि स्टेबल स्ट्रक्चर ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो सोडियम जो है उसकी भी टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसलिए उसकी वैलेंसी भी कितनी आ गई 1। तो वैलेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, जिनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? To understand about it more, let me take more examples. Oxygen and fluorine. Okay, oxygen atomic number is 8 and fluorine atomic number is 9. If we consider in K shell, that is 2, and in L shell, that is 6. In fluorine, that is 2 and 7. Now its outermost has 6 and its outermost has 7. So it has, अब either it can donate 6 or it can receive 2 electrons. ये या तो 2 डोनेट कर दो, या तो 2 ले लो, या 6 डोनेट करो। तो यहां पर इसकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की या 2 शेयर करने की। तो क्योंकि 2 लेगा या शेयर करेगा तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी, क्योंकि ये कितना कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसलिए वैलेंसी कितनी होगी इसकी 2। Now next one is fluorine. Outermost electron configuration is 7. So either it can donate 7 or either it can gain 1, take 1 electron. For easier way, it receive 1 electron. तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करता है, गेन करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है 1। Got it? So by the taking the examples of the electrons of outermost shell, we can easily calculate the valencies. Got it? Understand or not? So that is valency, and that is the determination, or we can say that factors which affect the valencies. In tomorrow class we will discuss more about the valency, and by taking the examples 1 to 18 elements of our periodic table. Okay, hope you like it. Thank you.